अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। बांग्लादेशी हिंदुओं के हक में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में उठाई आवाज। बांग्लादेश में बगावत के बाद अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में अक़लियतों पर जारी हमलों का मामला अब लोकसभा में भी गूंज उठा है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान हैदराबाद से लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेशी हिंदुओं के मसले पर हुकूमत से सवालात पूछे। इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि वह हिंदुओं पर होने वाले मुजालिम के बारे में हुकूमत क्या कर रही है। इनके सवाल का जवाब देते हुए वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि हम नजर रखे हुए हैं। लोकसभा एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सवाल का जवाब देते हुए वजीर खारजा ने कहा, हमारी हुकूमत बांग्लादेश में हिंदुओं और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद पर मुसलसल नजर रखे हुए है। हमने ये मसला बांग्लादेश की हुकूमत के साथ भी उठाया है। हाल ही में हमारे सेक्रेटरी खारजा ने भी बांग्लादेश का दौरा किया है। Drug entering from India from Myanmar, and we have committed $10 billion to the development of Bangladesh. What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? And what steps is this government taking to stop this dumping of fabrics from Bangladesh, which is destroying the power loom industry in India? Sir, regarding the point made by the honorable member on the Nepal currency, our position regarding our borders is very clear. So I think if there is any expectation in any of our neighbors that by doing something it would get India to change its position, I think they should be very clear that is not the case. I'm sure the entire House agrees with me in that regard. With regard to Myanmar, sir, because of the very disturbed conditions in Myanmar, we have had to review the open regime policy, which has historically been there. But we are sensitive to the requirement of the border communities. So it is something which we are working on. And part of the challenge is that there is very little government authority on the other side of the border. So most of what we have to do ourselves. But definitely there is today a much greater presence there to secure our borders and to monitor the movement of people across the borders. Regarding Bangladesh, sir, we have a good history of development projects. In fact, when we speak about neighborhood first policy, almost in every one of our neighboring countries, with the exception of Pakistan and China, we have had important development projects. That is the case with Bangladesh as well. And certainly it is our hope that with the new dispensation in Bangladesh, we will settle down to a mutually beneficial and stable relationship. With regard to the treatment of minorities in Bangladesh, it has been a source of concern. There have been multiple incidents of attacks on them. We have drawn our concern to their attention. Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting. And it is our expectation that in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. रियासत तेलंगाना में अनकरीब मेगा डीएससी का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जल्दी 6000 उस्तादा की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मेगा डीएससी मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने रियासत के हॉस्टल्स की सूरत हाल का जायजा लेने और तफसीलात हासिल करने के लिए मुनक्किदा एक रोज़ा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर खम्मम जिले के मुधीरा बोनाकुल में वेलफेयर गुरुकुल स्कूल का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही 6000 ओहदों को पुर करने के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिक़ा हुकूमत के दौर में 5 बरस में एक मरतबा भी हॉस्टल्स के तलबा के लिए डाइट और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा नहीं किया गया था। ताहम रियासत में कांग्रेस की बरसर इख्तिदार आने के बाद डाइट और कॉस्मेटिक चार्जेस में 40% का इजाफा किया गया है।
वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने सरकारी दवाखानों में फायर सेफ्टी के नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि मुकर्ररा मुद्दत में फायर सेफ्टी से मुतालिक तमाम जरूरी आलात नस्ब किए जाए। सरकारी हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी की सहूलतों का जायजा लेने के लिए हाल ही में हुकूमत की जानिब से तश्कील शुदा टास्क फोर्स ने वजीर सेहत को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। अहदेदारों ने बताया कि कई सरकारी दवाखानों में फायर अलार्म और धुएं की निशानदेही करने वाले आलात गैर कारकर्द है। गुज़िश्ता 5 वर्षों से फायर सेफ्टी आलात के मेंटेनेंस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। मुल्क के दीगर रियासतों में दवाखानों में आतिशबाजी के वाक़यात के बाद हुकूमत ने टास्क फोर्स तश्कील दी ताकि सरकारी दवाखानों में फायर सेफ्टी इक़दामात का जायजा लिया जाए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दवाखानों में फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर सरेक से मौजूद नहीं है और जिन दवाखानों में आलात मौजूद है वो गैर कारकर्द है। वजीर सेहत ने आला अहदेदारों के साथ इजलास में सरकारी दवाखानों की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि फायर सेफ्टी के मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहदेदारों से कहा गया है कि मुकर्ररा मुद्दत का तयन करते हुए तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी आलात नस्ब किए जाए। सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों की खिदमत करने के बजाय नर्सेस ने हॉस्पिटल के एक वार्ड में क्रिसमस तकरीब मुनक्किद करते हुए डांस किया। यह वाकया तेलंगाना के जगत्याल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल में पेश आया। नर्सेस को डांडिया के लिए इस्तेमाल होने वाली छोटी लाठियों के साथ फिल्मी गीत पर रक्स करते हुए देखा गया। इस वाकये की इत्तला के बाद जब मीडिया वहां पहुंचा तो नर्सेस उनको देखकर रक्स रोक दिया। यह तकरीब मरीजों के रूम से मुतस्सल कमरे में मुनक्किद की गई। आरएमओ हॉस्पिटल सुमन ने इस वाकये को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा कि उन्होंने ही इसकी इजाजत दी थी। एडिशनल कलेक्टर गौतम रेड्डी, जिनको इस मामले का इल्म हुआ, तो इस वाकये की जांच की इजाजत दे दी है। तेलंगाना का जिला आदिलाबाद शदीद सर्दी की लपेट में है। जिला के बेला मंडल मुस्तखिर में हफ्ते को 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत दर्ज किया गया। भीमपुर मंडल के अरली टी गांव में अकल तरीन दर्जा हरारत 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जिला के तमिलनाडु आदिलाबाद अर्बन जिनात और निराडीगुड़ा मंडलों में अकल तरीन दर्जा हरारत 7 डिग्री सेल्सियस था 9 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया गया है। नारनूर तमसी गुड़ी मंडलों में अकल तरीन दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। दरियासना आसिफाबाद जिला के सरपुर यू मंडल में अकल तरीन दर्जा हरारत 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि केरामेरी मंडल में 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। रियासत तेलंगाना के जिला नलगुंडा दामल्ला चिल्ला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में जुमे की रात देर गए चोरी का वाकया पेश आया। सारिकीन ने सीसीटीवी कैमरों पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया ताकि उनकी शिनाख्त ना हो। उन्होंने एटीएम मशीन को नुकसान पहुंचाकर ये वारदात अंजाम दी। अंदाजे के मुताबिक करीब 24 लाख रुपए की चोरी की गई। नलगुंडा सुपरिटेंडेंट पुलिस शरद चंद्र पवार ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया। जांच की क़यादत कर रहे हैं। पुलिस ने मुलजिमीन की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी है। पुलिस ने इलाका और अतराफ में हिफाजती इक़दामात किए हैं और तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। शहरियों पर जोर दिया गया है कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला दे। पुलिस की खुसूसी टीमें सारिकीन की तलाश कर रही है। तेलंगाना में मकान मालिक को डराकर लूट की वारदात। जी हां, दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर मकान मालिक को डरा धमका कर लूट की वारदात पेश आई। तेलंगाना के जिला जगतियाल के बेरपुर मंडल में हफ्ते की सुबह एक मकान में चोर दाखिल हुए, जिन्होंने मकान मालिक, जिसकी शिनाख्त ऐश्वर्या के तौर पर की गई है, उसको बांधकर उसकी पिटाई कर दी। बाद अज़ां 7 तोले के तिलाई जेवरात को लूट लिया। इस वाकये की पुलिस से शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने शवाहिद जमा किए। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो नाज़रीन किराम, ये थे सलामी टीवी इंडिया की कुछ अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।